کی دعوت، وزیر اعظم شہباز شریف سرکاری دورے پر دوحہ روانہ۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میرا دورہ دونوں ممالک کی دوستی اور تعاون کو نئی جدت دے گا، دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ کاروباری برادری سے ملاقات کے دوران پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ وزیر اعظم کو فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں پر بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اسلام آباد پولیس کا شہباز گل کے کمرے پر چھاپا، ایک پستول اور موبائل فون برآمد کر لیا۔ پولیس شہباز گل کو بھی ہتھکڑیوں میں لائی تھی۔ شہباز گل نے بتایا کہ یہ پستول میرا نہیں۔ چھاپے کے دوران پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ لاجز کے باہر موجود ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ جس کی تنخواہ 25,000 ہے، اس کو 12,000 روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ مہنگے داموں میں ضرورت سے زیادہ تیل خریدا گیا۔ حکومتی نااہلی کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں۔ جولائی میں ایکسپورٹ 25% نیچے آئی۔ آئندہ بجلی کے بلوں میں 10% یونٹ APF لگ کر آئے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اثر اور شوکت ترین مزمل اسلم کی کانفرنس۔ بلوچستان میں مونسون کا چوتھا سپیل، شمال مشرقی اور وسطی جنوبی بلوچستان کے مکین اشکبار۔ کئی روز سے جاری بارشوں اور سیلابی صورتحال نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلوں میں بہہ کر 2 معصوم بچیوں سمیت 9 افراد جاں بحق ہو گئے، 7 لاپتہ۔ کراچی، کوئٹہ شاہراہ 8 روز بعد عارضی طور پر بحال۔ ہرنائی، نوشکی، قلعہ سیف اللہ اور چاقی میں ہر طرف پانی ہی پانی۔ آفت زدہ علاقوں کے مکینوں کی مدد کیسے کی جائے؟ قدرتی آفت سے 2-4 بھائیوں کی بحالی کے لیے اہم اقدام۔ حکومت کی طرف سے ڈونرز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ مخیر حضرات پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی اپیل۔ سیلاب سے متاثرہ تمام علاقوں میں ایمرجنسی نافذ۔ آفت زدہ قرار دے کر آبیانہ اور مالیہ معاف کرنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں ریلیف آپریشن کا جائزہ۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے سیلاب کے متاثرین کی بروقت مدد کی۔ کور کمانڈر ملتان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، پاک فوج کے تعاون سے قیمتی جانوں کو بچانا ممکن ہوا۔ کورونا وائرس کیسز میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ کیسز کی شرح 1.92% ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 217 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ زیر علاج مریضوں میں 116 کی حالت تشویشناک۔ کل مریضوں کی تعداد 15,66,869 ہو چکی ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب میں آج کہیں کہیں بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہوا کا کم دباؤ آج سے سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کراچی میں کل اور 25 اگست کے دوران کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کی پیشگوئی۔ ملک بھر میں مسلسل بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہونے سے لاکھوں افراد متاثر ہوئے۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے سالانہ فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ ایلچی فریڈم شیلڈ نامی مشترکہ مشقیں 1 ستمبر تک جاری رہیں گی۔ امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوج 11 فیلڈ ٹریننگ پروگرام میں حصہ لے گی۔ سول وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر مشقوں میں میزائل کا پتہ لگانے کی صلاحیتوں کو بہتر بنایا جائے۔ نئے سسٹم کی جلد تعیناتی پر بھی زور دیا جائے گا۔ دنیا کرکٹ کا ایک اور بڑا ٹاکرا ہونے کو تیار۔ ایشیا کپ میں شرکت کے لیے قومی اسکواڈ دبئی پہنچ گیا۔ شاہین آج ہوٹل میں آرام کریں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کل سے دبئی میں ٹریننگ سیشن کا آغاز کرے گی۔ ٹورنامنٹ 27 اگست سے 11 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 28 اگست کو روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔ اور امریکی خاتون نے سر کے بال 110 فٹ تک بڑھا کر عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والی 60 سالہ آشنا مینڈیلا کو 2009 میں گینس ورلڈ بک میں شامل کیا گیا۔ اس وقت ان کے بال 19 فٹ اور 6.5 انچ لمبے تھے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ ان کے بال اب تک
110 फुट की लंबाई तक पहुंच चुके हैं। आशना मैंडेला की जुल्फों का मजमूई वजन 19 किलोग्राम है। बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको सबसे पहले बताएं कि अमीर कतर की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को नई जिद्दत देगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना होगा। कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म को फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा कि वज़ीर आज़म की इस दौरे की क्या अहमियत है? आपको बताएं कि अमीर कतर की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को नई जिद्दत देगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में आगाह करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि अमीर कतर की दावत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर दोहा रवाना हो गए। इस मौका पर वज़ीर आज़म का कहना था कि मेरा दौरा दोनों ममालिक की दोस्ती और ताउन को नई जिद्दत देगा। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। कारोबारी बिरादरी से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के बारे में भी आगाह करूँगा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा कि वज़ीर आज़म के इस दौरे की क्या अहमियत है? जी, जैसा कि मालूम को वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमीर कतर इज़्ज़त माब शेख तमीम बिन हमद अल सानी की दावत पर दो रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हुए हैं। वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान कतर दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए दोनों मुल्कों के बाहमी ताउन को फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। दफ्तर ख़ारजा के जानिब से जारी बयान के मुताबिक इस साल अप्रैल में वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का यह पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म के साथ काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफद भी जो है इस दौरे में शरीक है। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म की क़यादत से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर मुशावरत करेंगे। दोनों फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू का जायज़ा लेंगे। तवानाई से मुतालिक ताउन को आगे बढ़ाने के, तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को वसी करने और कतर में पाकिस्तान के लिए रोज़गार के वसी मौके तलाश करने में ख़ुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वो बामी दिलचस्पी के मुतहद इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब दोहा में कतरी और पाकिस्तानी ताजिर सरमायाकारों और कारोबार की शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। इसमें एक चीज़ और काबिल और है कि वज़ीर आज़म जो फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए कतर के हुकूमत की जानिब से की गई वसी तैयारी के बारे में उनको स्टेडियम का भी दौरा करवाया जाएगा। और पाकिस्तान के कतर के दरमियान करीबी और खुशगवार बरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका मजहबी, बामी एतमाद और फाहमत तफ़हीम और करीबी ताउन पर मबनी है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात दो तरफ़ा दिलचस्पी के तमाम मुस्तफ़ा खान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल के कमरे पर छापा, एक पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस शहबाज गिल को भी हथकड़ियों में लाई थी। शहबाज गिल ने बताया कि ये पिस्तौल मेरा नहीं। छापे के दौरान पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट लॉजिस के बाहर मौजूद है। आपको यहाँ पर अपडेट करें कि इस्लामाबाद पुलिस का शहबाज गिल के कमरे पर छापा, एक पिस्तौल और मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उमर अवैस करदेसी से। जी उमर, बताएगा कि उनके कमरे से क्या क्या चीज़ें बरामद की गई हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस रात के वक्त बगावत उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ है शहबाज गिल, उनको लेकर पार्लियामेंट लॉजिस में पहुंची। इस दौरान उन्हें हथकड़ियां लगी हुई थी। पुलिस ने कमरे की तलाशी के दौरान एक पिस्तौल समेत मुतअद्दिद अशिया जो है वो बरामद की हैं। शहबाज गिल ने असला की मलकियत से तो इनकार कर दिया और जो पुलिस का जो बयानिया था कि बरामद शुदा असले का लाइसेंस अगर शहबाज गिल ने न दिखाया
تو ان پر ایک اور مقدمہ درج کیا جائے گا۔ شہباز گل کو پارلیمنٹ لاجد میں کمرہ نمبر F206 میں لایا گیا، جہاں پہ وہ رہائش پذیر ہوتے تھے۔ شہباز گل کے گھر جو پارلیمنٹ میں ہے وہاں سے سرچ آپریشن کیا گیا، تو پولیس کو وہاں سے ایک پستول ملا، ایک سیٹلائٹ فون برآمد ہوا، اس کے علاوہ موبائل، کریڈٹ کارڈ، ڈائری، USB بھی وہاں سے ملی۔ شہباز گل کے کمرے سے ان کا جو پرس بھی ملا جس میں 2 شناختی کارڈ موجود تھے، اس کے علاوہ مختلف کارڈ مزید بھی تھے جو وہاں سے برآمد ہوئے، اور اس کے علاوہ 2 پاسپورٹ بھی شہباز گل کے کمرے سے برآمد کیے گئے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل پر ناجائز اسلحہ برآمدگی کا ایک اور کیس درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران جب شہباز گل نے وہاں پہ موجود میڈیا نمائندگان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے جب پرس وہ گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں کیسا ہے انہیں کوئی اس کا علم نہیں ہے۔ پرس ڈرائیور کے پاس ہوتا ہے، جس کمرے سے اسلحہ ملا وہ گارڈ کے ذریعے استعمال رہتا ہے، شاید یہ اسی کا ہو۔ اور انہوں نے یہ بتائے گا یہ چیزیں تو برآمد ہو گئی ہیں، اور شہباز گل کا پہلے بھی ایک کیس ہے اور یہ چیزیں برآمد ہو گئیں، تو اب ان چیزوں کے برآمد ہونے کے بعد جو پچھلا کیس ہے اس پر کتنا اثر ہوگا ان چیزوں کا؟ جی بالکل، جیسا کہ جو پچھلے کیس میں عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ شہباز گل کو پولیس کے حوالے کیا تھا، اور یہی چیزوں کی برآمدگی کے لیے جو پولیس دعویٰ کر رہی تھی کہ شہباز گل سے ہم نے کچھ چیزیں برآمد کروانی ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جو چیزیں کل ان کے کمرے سے پولیس نے برآمد کی ہیں اس سے اگر جو موبائل وغیرہ ملے ہیں یا جو سیٹلائٹ فون وغیرہ ملے اس میں وہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جس سے مطلب کہ شہباز گل نے فوج پاکستان کے خلاف یا جس طرح کے اداروں کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ چلایا تھا، ایک مہم چلانے کی کوشش کی تھی، تو اس سے شاید کہ پولیس کو کوئی مدد مل سکے یا کوئی اس طرح کا کوئی انہیں کسی قسم کا کوئی ریکارڈ مل سکے۔ تو یہ تھی کہ پیش نظر یہ جو کل تلاشی لی گئی ہے یہ تھی، جبکہ جو شہباز گل ہیں انہوں نے پستول کے جو ملکیت ہے اس سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس AK-47 موجود ہے اور AK-47 کا میرے پاس لائسنس ہے، جبکہ یہ پستول انہوں نے برآمد کی ہے یہ پستول میرے ڈرائیور یا جو میرا چوکیدار ہے، یہ جو کمرے میں جو ملازم رہتا ہے یہ اس کا ہو سکتا ہے، میں نے کبھی اس پستول کو دیکھا ہی نہیں ہے جس میں یہ پولیس یہ بتائیے کہ یہ چیزیں برآمد ہونے کے بعد جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا بھی کوئی موقف سامنے آیا ہے، ان کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ جی بالکل، اسلام آباد پولیس کا موقف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ابھی پستول برآمد ہوا ہے جس سے شہباز گل ملکیت سے انکار کر رہے ہیں، تو اسلام آباد پولیس کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ ایک اور مقدمہ درج کیا جائے گا۔ شہباز گل کے پاس یہ پستول کیوں آیا، کہاں تھا، اور یہ لوڈڈ پستول تھا، اور یہ غیر قانونی طور پہ شہباز گل نے کیوں رکھا تھا، یہ پولیس کا موقف تھا۔ عمر اویس صاحب کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ مہنگائی کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر ہیں، جس کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو 12,000 روپے بجلی کا بل آ جاتا ہے۔ مہنگے داموں ضرورت سے زیادہ تیل خریدا گیا، حکومتی نااہلی کے سبب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھیں، جولائی میں ایکسپورٹ 25% نیچے آئی، آئندہ بجلی بلوں میں 10% یونٹ FPA لگ کر آئے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما حماد اثر، شوکت ترین مزمل اسلم کا لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے، اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے، انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے۔ میں تو PTI کا ایک فٹ سولجر ہوں، تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے۔ پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ میں ایک PTI کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں، اور بہت لوگ ہیں جن کو لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب، حکومت کا سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس بلانے کا فیصلہ۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کے لیے اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کہ مخیر حضرات پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں دل کھول کر عطیات دیں۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی کی لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے لاہور میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
बलूचिस्तान में मानसून के चौथे स्पेल ने एक बार फिर शिमाल मशरकी और वस्त जनूबी बलूचिस्तान के मकीनों को अशकबार कर दिया। कई रोज से जारी मूसलाधार बारिश और सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों में बहकर 2 मासूम बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक और 7 लापता हो गए। कराची कोयटा शाहराह 8 रोज बाद आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान के बेशतर बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हर नाई अतराफ से सैलाब के घेरे में है। पीर के शाम अफगानिस्तान से आने वाले सैलाबी रेलों ने नौशकी, कला अब्दुल्ला और चाकी में तबाही मचा दी। सिर्फ नौशकी के 7 देहात उन सैलाबी रेलों में डूब गए। दर्जनों मकानात को नुकसान पहुंचा। चमन, पशीन, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में भी सैलाबी रेलें तैयार फलों और बागात और खड़ी फसलें अपने साथ बहा कर ले गए और किसान हसरत भरी नजरों से अपनी दुनिया को बर्बाद होते देखते रह गए। मुल्क भर की तरह बख्शापुर में भी मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाके ज़ेर आब। इंतजामिया की तरफ से ताहाल कोई इकदाम नहीं उठाए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहारुख खान से। जी सुहारुख खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इस टाइम मौजूद हैं बख्शापुर के साथ नवाही गांव यूसी गुबलो में मौजूद है। बात की जाए बारिशों की तो 7 दिन से मुसलसल जो बारिश वक्फे से जारी है। कई गरीबों की कच्चे मकानात जो हैं वो ढह गए हैं। मजीद हमारे साथ कुछ गाँव मकीन भी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहना है इस हवाले से? गवर्नमेंट की तरफ से आपको टेंट मिला है, कोई इमदादी सामान आपको मिला है? हिन टाइम ताईं असांखे कुझु न मिलियो। 7 ॾींहं खां वठी बरसाति हले थो, असांजा घर रही पिया, असांजा जायूं त रही पिया। हिन टाइम ताईं तव्हां हालत पाण ॾिसो, न को गवर्नमेंट असांखे तंबू ॾिनो आहे, न को असांखे टेंट मिलियो, न को सामान मिलियो। हिन टाइम ताईं असांजो कुझु न थियो। असां गवर्नमेंट खे अपील कयूं था, डीसी साहब खे, त ख़ुदा रहा असांखे को तंबू, को सामान असांखे ॾिनी वञे। जी बिल्कुल, आपने यहाँ के गांव मकीनों की बातें भी सुनी। उनका कहना है कि ज़िला इंतजामिया से कोई भी तावन नहीं किया गया। हम सिंध गवर्नमेंट से और डीसी कश्मीर। सुहारुख खान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की तरफ से कराची में कल और 25 अगस्त के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई। हवा का शदीद कम दबाव आज से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है, जिससे कराची में आइंदा 2 रोज़ में बारिश का इम्कान है। शहर कायद में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने, बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। शहर में सुबह सवेरे चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 88% रहा। जुनूब मगरिब की समत से चलने वाली हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। फिल्टर प्लांट कब्रिस्तान हालिया बारिशों से तबाहाली का शिकार। फी कबर 10,000 रुपये वसूली के बावजूद ख्याल नहीं रखा जाता। मजीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं फिल्टर प्लांट कब्रिस्तान में, जहां पर हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है और काफ़ी कब्रें जो हैं वो मुनद्दम हो गई हैं। इस हवाले से लवाहिकीन जो हैं जहां पर जो दुआ के लिए आते हैं, उनका क्या कहना है, आइए पूछते हैं। इंतजामिया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इलाके के लोग अपनी मदद आपके तहत मिट्टी भी मंगवा रहे, कब्रें भी जो ना भराई कर रहे हैं। बाकी इंतज़ाम हालत है कि तमाम की तमाम कब्रें गिरी हुई हैं। तो कम अज़ कम स्टील मिल इंतज़ामिया से ये गुजारिश है कि डंपर में मिट्टी यहाँ डलवाए, ताकि जो भी लोग हैं अपनी प्यारों की कब्रों पे, अपने लावाकिन की कब्रों पे भराई तो कर सके। इंतज़ामी कोताही यकीनी तौर पर है। अब वो चाहे आप इंतज़ामिया की जानिब से कहें या सिंध हुकूमत की जानिब से कहें, जो एक दूसरे पर इस मसले को डालते आ रहे हैं। अब ये मसला एक दूसरे पर डालने के बजाय अब ये हल तलब है, क्योंकि कब्रों का हाल आप खुद देख रहे हैं, कब्रें गिर गई हैं और कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। कब्रिस्तान के चारों तरफ एक बरसाती नाला बना दिया जाए ताकि बारिश का पानी उससे जो है वो नकास आसानी से हो सके। अगर नकासी का मामला दुरुस्त तरीके से होगा तो ये पानी ज़ाहिर है कब्रों की तरफ नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा और कब्रें नहीं। तो पहले तो मैं कोहनूर टीवी चैनल का जो है शुक्रिया अदा करता हूं, जो इस मसले पे यहाँ पे आ जाए। जी, आज हम यहाँ पे आए अपने प्यारों की कब्रों पर। जो हमने कब्रिस्तान की हालत देखी है, कई मरतबा यहाँ इंतज़ामिया को भी और सबको भी हमने तहरीरी दरख्वास्तें भी दी है कि भाई खुदारा इस कब्रिस्तान को जो हालत है उसको देखा जाए और यहाँ पे जो मसले हैं उनको तवज्जो दें। अभी आप देख रहे होंगे ये कब्र है, क्या हाल है। जो हमारे प्यारे हैं, ठीक है बरसातों का मौसम है, हर तरफ पूरे पाकिस्तान में जो है ना सैलाब हैं, बरसातें हो रही हैं, मगर यहाँ पे ये वो इलाका है जहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा इलाका है। यहाँ पे बरसात का पानी नहीं रुकता। अगर इंतज़ामिया सही तरीके से यहाँ पे
अपने प्यारों की कब्रों पर दुआ के लिए आने वाले लवाहिकीन ने हुकूमत सिंध और स्टील मिल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कब्रों की मरम्मत की जाए और कब्रस्तान के मुकम्मल हल के लिए इक़दाम किए जाएँ। कैमरामैन मुमताज़ के घोटकी में 10 रोज से जारी बारिश की तबाहकारियाँ। बारिश के बायस देहातों में सैकड़ों मकानात तबाह, रोड और सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ गए। इलाका मकीन महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जावेद खोसा से। जी जावेद, बताइएगा कि वहाँ पर बारिश की क्या सूरत हाल है? जी, घोटकी में 10 रोज से जारी बारिश की तबाहकारियां जारी हैं। घोटकी और गिरदनवा इलाकों में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस देहातों के सैकड़ों मकानात मुनहदम हो गए हैं। रोड और सड़कें मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ गए हैं। बारिश के बायस देहात नसीर खान खोसा, बालाज खान, जाफर खान, मोहम्मद इस्माइल, अरबाब कलादी, जीवन कोलाची, सैफल कोलाची और दीगर देहातों में बारिश के बायस मकानात गिर गए हैं। मथेलो और इसके आसपास जो भी इलाके हैं मुकम्मल ज़ेर आब आने से इलाका मकीन महफूज मकामात पर नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। तो कुछ मुतासरीन खानदान जिनके घर बरसात के बायस गिर गए हैं वो खुले आसमान तले बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। जब हमारी बात मुतासरीन से हुई तो उनका कहना था कि मुसलसल बरसने वाली बारिश के बायस हमारे मकान गिर गए हैं और हम खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन का मजीद कहना था कि अभी तक कोई नुमाइंदा हमारी तरफ मदद के लिए नहीं आया। हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, बरसात को बरसते 10 दिन हो गए हैं, अब तो 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। मुतासरीन ने घोटकी इंतजामिया और वजीर आला सिंध से मुतालबा किया कि हमारी मदद की जाए ताकि इस बरसात से हम अपना और अपने बच्चों का सर छुपा सकें और 2 वक्त की रोटी खा सकें। जी जावेद खोसा, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बारिश ने हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में तबाही मचा दी। इलाका मकीन लकड़ी की कश्ती बनाकर इस्तेमाल करने लगे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद वहीद राजपूत से। जी मोहम्मद वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मंजर जो है किसी झील का नहीं है। मंजर जो है लतीफ़ाबाद मेहर अली का इलाका है, जहाँ पर ये मूसलाधार बारिश से कई फीट पानी जमा होने से इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। जहाँ पर जो घरों में कई फीट पानी जमा होने से इलाका मकीन जो शदीद परेशान है। उनके घरों में राशन ख़त्म हो गया, पे रात छतों पे गुजारने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ का इलाका मकीन शहरी मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं, इनका मजीद क्या कहना है। जी, बरेली का इलाका है, फातिमा जिन्ना कॉलोनी। यहाँ पर कोई जिम्मेदार आदमी ऐसा नहीं आया अभी तक। 4-5 दिन से पानी कम से कम 4 फुट 3 फीट के करीब जो है खड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई मालूम तक करने नहीं आया कि भाई तुम किस हाल में हो। न किसी बच्चे को कोई निकालने आया, न कोई किसी का सामान निकालने आया, न कोई किसी से पूछने आया है और ना कोई इंतजाम है। वो पाइपलाइन यहाँ पे बोल रहे बिछा रहे हैं, मशीन लगा रखी हुई है खाली दिखाने के लिए और न चला रहे हैं उसे। 4 दिन जो है मशीन को लगाए हो गए, लेकिन रोज़ाना जब ये पूछते हैं भाई मशीन क्यों नहीं चला रहे, बोले भाई अभी जो है पाइपलाइन डल रही है, कि बारिश हो रही है, कि अभी उसका जोड़ नहीं लगे, कि अब फलाना नहीं हुआ, अब खुदाई नहीं हुई है। ये बहाना कर जो है बैठ जाता है। अब यहाँ पर जो है इतनी परेशानी हो रही है, ईंधन तक ख़त्म हो गया, लोगों के पास खाने पीने तक को नहीं है, ना कोई काम धंधे से बैठे हुए हैं। महीना कम से कम तकरीबन बारिश को चलते हो गया। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी इलाका मकीन के। इलाका मकीन का यही कहना है कि यहाँ महीना हो गया एक बारिश चलते हुए को और हमारे घरों में राशन ख़त्म हो गया है, हमारे घरों में दवाइयाँ नहीं है। अच्छा, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से झूठे दावे किए जा रहे हैं कि मोटरें लगा दी हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घरों में 4-4 फीट पानी जमा है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हज़ारा डिवीज़न में सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग रोकने के लिए महकमा जंगलात का 6 करोड़ दरख्त लगाने का काम शुरू। डिप्टी कमिश्नर मानसेरा का कहना है कि हज़ारा डिवीज़न के मुख्तलिफ अजला में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात नाकाबिल तलाफ़ी हैं। उनका कहना था कि महकमा जंगलात का अमला सियाहत की तरक्की की खातिर वादी कागान में शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सैलाब से मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज। सैलाब ज़दा इलाकों को आफत ज़दा करार देकर वहाँ आबियाना और मालिया माफ़ करने का भी ऐलान। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में जनूबी पंजाब में सैलाब और रिलीफ ऑपरेशन का जायज़ा लिया गया।
پاک فوج نے سیلاب متاثرین کی بر وقت مدد کی، جس پر کور کمانڈر ملتان کا مشکور ہوں۔ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج کے تعاون سے لوگوں کی قیمتی جانوں کو بچانا ممکن ہوا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے سیکٹری آبپاشی کو ہدایت کی کہ پانی تباہی مچاتا ہوا ضائع ہوتا ہے، اسے محفوظ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ کراچی کی احتساب عدالتوں میں ججز کی کمی سے متعلق نوٹس کی سماعت کے دوران ججز کی تقرری پر جواب جمع نہ کرانے پر سندھ ہائی کورٹ نے اظہار برہمی کیا ہے اور وفاقی حکومت کو اس حوالے سے 12 سپتمبر تک مہلت دے دی۔ عدالت عالیہ نے کہا کہ گزشتہ سماعت پر کہا گیا تھا کہ تقرری کے لیے سمری صدر مملکت کو بھیج دی گئی ہے۔ جسٹس جنید غفار نے کہا کہ ہر سماعت پر نیا ڈپٹی اٹارنی جنرل آ جائے گا تو کیس نہیں چلائیں گے۔ انہوں نے استفسار کیا کہ بتایا جائے کہ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے۔ نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ 3 نمبر کورٹ کے جج کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے اور کورٹ خالی ہے۔ اسی عدالت میں تقریباً 40 ریفرنسز زیر التوا ہیں۔ مزید 5 عدالتیں قائم کی گئیں، لیکن صرف کورٹ نمبر 6 کام کر رہی ہے۔ وفاقی حکومت کا جواب آ جائے پھر فیصلہ کر دیں گے۔ نیب حکام نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں 10 احتساب عدالتیں قائم ہیں، جن میں سے صرف 4 عدالتیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو جواب جمع کرانے کے لیے 12 سپتمبر تک مہلت دے دی۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کے باعث 29 اگست سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے سی ای او جمید اللہ ناصر نے جیو نیوز کو بتایا کہ بلوچستان بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم 29 اگست سے شروع ہونی تھی، تاہم صوبے میں سیلاب کی صورتحال اور موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہم کو 1 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سی ای او ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق صوبے بھر میں اب انسداد پولیو مہم سپتمبر سے شروع ہوگی، جو کہ 5 روز تک جاری رہے گی۔ اس دوران صوبے کے 34 اضلاع میں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو انسداد پولیو مہم کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بحال۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق تکنیکی خرابی کے باعث معطل انٹرنیٹ سروس کو بحال کر دیا گیا۔ رات بھر ملک کے شمالی اور وسطی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس معطل رہی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد سمیت اہم شہروں میں صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اورنگی ٹاؤن کے علاقے میں 2 ڈاکوؤں نے بینک کے باہر موجود پیٹرول پمپ کے عملے میں 36 لاکھ روپے چھین لیے۔ پولیس کے مطابق اورنگی ٹاؤن سیکٹر 5E میں شاہراہ اورنگی پر بینک کے باہر ڈکیتی کی واردات ہوئی، جس میں 2 نامعلوم ملزمان پیٹرول پمپ کے مینیجر سے 36 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ واقعے کا مقدمہ پیٹرول پمپ مینیجر کی مدعیت میں پیر آباد تھانے میں درج کر لیا گیا، جس میں کہا گیا کہ پمپ مینیجر اپنے ملازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر 36 لاکھ روپے لے کر نکلا، جسے بینک کے باہر موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان نے روکا اور اسلحہ کے زور پر رقم چھین لی۔ کچھ روز قبل اسی طرح کی واردات ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بھی ہوئی، جس میں 4 ملزمان پیٹرول پمپ مینیجر سے بینک کے باہر سے 80 لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے تھے۔ بلیٹن میں اب کچھ بات کریں کورونا کی کہ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 2% سے بھی کم ریکارڈ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 217 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ عالمی وبا کے باعث مزید 2 مریض انتقال کر گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں کورونا وائرس کے مزید 11,285 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کیسز کی شرح 1.92% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا وائرس کے زیر علاج مریضوں میں سے 116 کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب پولیس نے شہریوں کی مدد کے لیے نئی ایپ آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف کروا دی ہے۔ شہریوں کو اب کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کہتے ہیں، موبائل فون پر اب ایک میسج کریں، آپ کی شکایات کا فوری ازالہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب فیصل شاہکار کے ہمراہ پنجاب پولیس سے تعلق رکھنے والے افسران بھی موجود تھے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ آئی جی پنجاب کے دفتر میں موجود، جہاں پر آئی جی پنجاب کی زیر صدارت جو ہے وہ ایک اجلاس ہوا ہے، جس میں عوامی مشکلات کے فوری ازالے فوری ریلیف دینے کے لیے پنجاب پولیس نے 2 نئی سروسز کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے۔ سینٹرل پولیس آفس میں منعقدہ تقریب میں پنجاب پولیس واٹس ایپ سروس اور آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا ہے۔ آئی جی پنجاب
फैसल शाहकार ने पंजाब पुलिस की दोनों सर्विस का जो है वो डिजिटल इफ्तिताह भी किया है, जबकि पंजाब पुलिस ने शहरियों की खिदमात फौरी के लिए व्हाट्सएप सर्विस शुरू कर दी है। जबकि पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर जो है वो 0331787178 है, जिससे जो है वो हर शहरी मुस्तफीद हो सकता है। आईजी पंजाब कहते हैं कि इस नंबर पर शहरी हेलो नाम लिख कर भेजें तो पुलिस की वन साइड सर्विस की तफसील खुद ब खुद जो है वो सामने आ जाएगी। और इसी तरह से मालूमात के हसूल के लिए शहरियों को किसी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि घर बैठे अपने मोबाइल से ही पुलिस सर्विसेज तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि अवाम की सहूलत के लिए पंजाब पुलिस के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को भी जो है वो ऑनलाइन कर दिया गया है, जो है कि शहरी ऑनलाइन अपनी शिकायत करा के न सिर्फ ई टैग नंबर हासिल कर सकते हैं, बल्कि शिकायत पर होने वाली कार्रवाई बारे लम्हा बा लम्हा जो है वो अपडेट भी ले सकते हैं। आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी इस वक्त जो है वो सर्विस के तहत कहीं भी बैठे मालूमात जो है वो मिल सकती है, जबकि मुस्तकबिल में भी मजीद सर्विस भी इसकी जो है वो इसमें शामिल होगी और शहरियों की शिकायत पर ताखीर से एक्शन लेने वालों के खिलाफ भी जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस तरह से शहरी जो है वो पहले थाना के चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन देते हैं, फिर थानेदार को मिलते हैं, उसके बाद जो है कार्रवाई का आगाज किया जाता है। अब जो है वो शिकायत करने के लिए चाहे पब्लिकली हो या वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 75वें यौम आज़ादी के हवाले से पासबान वतन के ज़ेर एहतमाम तकरीब ग्रीन टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर जमाल नासिर ने सदारत की। डिस्ट्रिक्ट खतीब हाफिज इकबाल रिजवी ने सरपरस्ती की। तकरीब के दीगर शुरका में मेज़बान चौधरी खुर्शीद अनवर, मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान अवामी तहरीक गुलाम अली खान, अलामा इजहार बुखारी, खातून समाजी रहनुमा नईम अकरम कुरैशी, अलामा नैयर अब्बास, शेख अब्दुल वहीद, हकीम महमूद द सहारनपुरी, जावेद खान बंगश, अब्दुल रहमान तवक्कली, चौधरी अब्दुल मजीद, शेख परवेज़ मकबूल, इरफान सिद्दीकी, शान अंसारी एडवोकेट व दीगर ख़वातीन व हज़रात, मजहबी व सियासी समाजी शख्सियात समेत अंजुमन फैज़ इस्लाम की इंतज़ामिया और ज़ेर तालीम बच्चों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कायद आज़म ने अपनी मुजाहिदाना जिद्दोजहद के ज़रिए तमाम मकासद फ़िक्र के उलमा व मशाइख के साथ मिलकर मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल किया। हमारे आबा व अजदाद ने लाजवाल कुर्बानियों के बाद लाखों जानों का नजराना पेश करके पाकिस्तान हासिल किया। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान की बका के लिए हमें एक कौम बनकर मुल्क की तरक्की में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा इरफान अली काठिया का कहना है कि डेंगू के तदारुक की काविशें माशरे के इज्तिमाई मफाद में है। बारिश की गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र डेंगू वायरस का खतरा बढ़ रहा है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया ने कहा है कि डेंगू वायरस के तदराक की काविशें माशरे के इज्तिमाई मफाद के लिए हैं। इन काविशों को समरावर बनाना है। बारिश की गैर मामूली सूरत हाल के पेश नज़र डेंगू वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जिसके लिए एहतियाती तदाबीर ही बेहतरीन हिकमत अमली है। ताजिर बरादरी इज्तिमाई तौर पर इज़दादे डेंगू मुहिम में शामिल होकर तमाम कारोबारी मराकज़ डेंगू फ्री बनाने में महकमे सेहत की टीमों के साथ तामुन करें और हाउस कीपिंग के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर अपने दफ्तर, दुकान, प्लाजा और दीगर कारोबारी सरगर्मियों की जगह पर कार्रवाई करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अब्दुल हमीद जज, जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद अशरफ की सरबराही में मिलने वाले वफ्द के शुरुआत से बातचीत करते हुए किया। वफ्द में नायब सदर मोहम्मद सरवर, मोहम्मद रियाज समेत ताजर तंजीमों के दीगर अहदेदारान भी शामिल थे। ताजरों ने इज़दादे डेंगू मुहिम की खिदमात में ज़िला इंतज़ामिया की भरपूर मामनत और मदद के अज़म का आदा किया और कहा कि ज़िला की तीनों तहसीलों में मरकज़ी अंजुमन ताजरान अपनी 72 झैली तंजीमों के साथ मिलकर ज़िला को मुकम्मल तौर पर डेंगू और पोलियो फ्री बनाने में अपना किरदार। लकी मरवत के इलाका बेगोखेल में पुलिस फायरिंग से नौजवान के कत्ल के खिलाफ एहतजाज जारी है। कल से बन्नू म्यावाली शाहरा बंद, मकतूल की नमाज जनाजा सड़क पर ही अदा की गई। पुलिस समेत इंतजामिया अभी तक खामोश तमाशाई।
मज़ीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शरीफुल्लाह खान से। जी शरीफुल्लाह, बताइएगा कि अभी तक मुल्जिमान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जी बिल्कुल, लकी मरवत के नहरी इलाके भी गुखेल में गुज़श्ता रात मुबैना तौर पर पुलिस मुकाबले में नौजवान सलीम के कत्ल होने के बाद अहले इलाके की तरफ से शदीद एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने लकी मरवत शहर में धरना दे रखे हैं और बनु मियाँवाली शाहराह भी कल रात से बंद है, जिससे शहर में हालात इंतहाई कशीदा हो गई हैं। जबकि मकतूल की नमाज जनाजा भी लकी मरवत के मसरूफ तरीन कारगिल चौक पर अदा कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस का मौक़िफ़ है कि मकतूल के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और गुज़श्ता रात पुलिस को देखते हैं उसने पुलिस मोबाइल पर फायरिंग कर दी, जिससे एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ और पुलिस की जवाबी फायरिंग से वो मारा गया। मुजाहिरीन का कहना है कि एसएचओ को मुअत्तल करके उनके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। ताहम मुजाहिरीन से मुज़ाकिरात के लिए ताहाल इंतजामिया का कोई एहलकार नहीं आया है। जी शरीफुल्लाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान की हरीपुर अहमद, उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान और मलिक अदील इकबाल ने पुरतपा के इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर साबिक वफाकी वज़ीर अली मोहम्मद खान की हरीपुर आमद पर इनका इस्तकबाल साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान, यूसुफ अयूब खान और उम्मीदवार PK-45 मलिक अदील इकबाल ने किया। इस हवाले से एक बड़े जलसे का एहतमाम भी किया गया। साबिक वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान, साबिक सूबाई वज़ीर यूसुफ अयूब खान और मलिक अदील इकबाल ने जलसे से खिताब किया। उमर अयूब खान ने अपने दौरे हुकूमत में मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। साबिक सूबाई वज़ीर यूसुफ अयूब खान ने कहा है कि मेरे 2 भाई, एक MPO है और दूसरा सूबाई वज़ीर, लेकिन हम इलेक्शन चाहते हैं क्योंकि हमने आवाम के साथ किए गए वादे पूरे किए हैं। जलसे से मेहमान खुसूसी अली मोहम्मद खान ने भी खिताब किया और कहा, जो कुछ किया आप सबके सामने, किसने किया? सबसे बड़ा दहशतगर्द अमेरिका और उसका बाप इसराइल, और उसको आंखों में आंखें डाल के उम्मत मुस्लिमा का केस लड़ने वाला और अमेरिका में जाके हुर्मत रसूल का केस लड़ने वाला वो दहशतगर्द है। अगर इमरान खान दहशतगर्द है तो 22 करोड़ पाकिस्तानी बच। अमेरिका और जनूबी कोरिया का सालाना फौजी मशकों का आगाज़। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक एलची फ्रीडम शील्ड नामी मुश्तरका मशकें 1 सितंबर तक जारी रहेंगी, जिसमें अमेरिका और जनूबी कोरिया की फ़ौज 11 फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेगी। सिविल वजारत दिफा का कहना है कि शिमाली कोरिया के बढ़ते खतरात के पेश नज़र मशकों में मिसाइल का पता लगाने की सलाहियतों को बेहतर बनाया जाएगा और नए इंटरस्पेटर सिस्टम की जल्द तैनाती पर भी जोर दिया जाएगा। रूसी दारुल हुकूमत मास्को के मशरकी रीजन रियाजान में जंगलात की आग बेकाबू। 20,000 एकड़ तक आग फैलने के बाद रीजन में हंगामी सूरत हाल। इंतजामिया की जानिब से मास्को के शहरियों को मास्क पहनने की ताकीद। इंतजामिया का कहना है कि आग से पैदा होने वाली स्मोक के असरात को बेअसर करने के लिए अवामी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। खबर एजेंसी का कहना है कि आग के सबब पैदा होने वाले धुएं से हद निगाह भी मुतासिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीदरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में कामयाबी हासिल करने के बाद एशिया कप में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गई। शाहीन आज आराम करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से दुबई में ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेगी। पाकिस्तान ने कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए फौज फराहम करने के माहिदे की मंजूरी दे दी। वजारत इत्तलात मरियम औरंगजेब ने गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान कतर में होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए फौजी एहलकार भेजेगा। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए दोहा और इस्लामाबाद के दरमियान तय पाने वाले सिक्योरिटी माहिदे की मंजूरी काबीना ने दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।